निकालनी है। ये देखो कौन सी नोटबुक, कौन सी क्लास है ये मैथ्स की क्लास है ना बेटा, तो ऑब्वियसली आप मैथ्स की नोटबुक पे करोगे, है ना। ठीक है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर आप बीच में क्वेश्चंस पूछते रहते हो और वो जो एक्सप्लेन करना होता है कंटेंट वो रह जाता है। ठीक है, ओके, सो ऑल सेट, वेरी गुड। नाउ, so as in the revision class, we did the revision of the concept expanded form and short form, okay, and predecessor and successor. So in today's class, we did predecessor. So once I am going to explain what is predecessor. Predecessor means pre means पहले, तो predecessor means अगर हमें किसी भी नंबर का predecessor लिखना है, मतलब हमें उससे पहले वाला नंबर लिखना है, जो हमें कैसे पता चलेगा, -1 करके, है ना। और अगर हमने किसी भी नंबर का सक्सेसर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसमें +1 करके, मीन्स हमें उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है किसी भी नंबर का। सपोज 15 नंबर इज देयर, ओके, आई हैव टू राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 15, दैट विल बी 14। 14 मुझे कैसे पता चला, उसमें -1 करके, ओके। एंड इफ आई हैव टू राइट द सक्सेसर ऑफ 15, दैट विल बी 16, और 16 मुझे कैसे पता चला, उसमें 1 प्लस करके, ओके। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट आफ्टर एंड बिफोर। आपने फर्स्ट क्लास में आफ्टर बिफोर किया है ना, तो प्रीडिसेसर मीन्स यू हैव टू राइट द नंबर दैट इज बिफोर, that comes before, and you have to write the number successor that comes after. Okay, so today's activities are based on these concepts. So I am going to present my screen. In between, nobody will present their screen, okay. Okay, so now you can see my screen. Yes, here you can see a car. You can see a car, okay. Now here is a number plate in front of the car. कार के फ्रंट में नंबर प्लेट लगी है और उस पे एक नंबर लिखा है ना। So what you have to do, you have to write the expanded form of that number, okay. आपको इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है चैट बॉक्स में। वेरी गुड, you have not you need not to write the number in the chat box, you have to write the expanded form. Very good, I am waiting for your answers. Yes, Anunpreet Sani, very good. Sarpon has given the right answer. Very nice, Sarpon. Venu, beta, write your name also in the chat box. Sahib Preet, very good. Dhankor, you haven't put the sign of plus. Good. Prabnur, your answer is wrong. Mahin, good. Anshika, Rajesh Gautam, Himmat, Divesh, you haven't written in expanded form. Arman, very good. Aryan, very good. Tanveer God, very good. Saurabh, very good. Kadya, good. Tejpreet, good. I'm getting the responses, very nice. Hitanshi, very good. Nirmit, very good. Arav, very good. Ruchi, Agrawal, Harshana, very good. Mandeep, Abhav, very good. Pavleen, very good. Harkirat, your answer is wrong, Harkirat. Check it. Niharika, very good. Avish, very good. Harnoor Kaur, very good. Preeti Taneja, very good. Japleen, very good. So I have got the answers. Now I am going to stop sharing this screen. We will discuss this concept. Okay, now see. मैम किधर है? Okay.
चलने दे उसको. See on the board, I am going to explain this concept. When we write in expanded form, yes. What was the number? Aishman, tell me what was the number? 5,986. Okay. So when we will write in expanded form, I have told you the golden rule. What you will do, you will write the place values on the top. Ones, tens, hundred, thousands. Okay. Now when we will explain in expanded form, what we will do, 5 is at thousands place. तो 1000 में कितनी zeros होती है? 3. तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 3 zeros. और the other method you can see, 5 के बाद कितने digits हैं? 3, 1, 2, 3. तो उतनी हमने zeros लगा ले. Okay. Then plus place पे 9 है तो 900. Tens place, 8 is at tens place, so we will write 8 and 8 के बाद कितने digit है? 1 digit है तो 1 0. Plus 6 is at ones place, so 6 will come alone. Okay. In this way, we will write expanded form. Now, if we have to change it in short form, इसी form में अगर हमें change करना है, हमें expanded form given है, तो what we will मैम do? the code is not visible. Position इसकी थोड़ा सा yes मैम ऊपर उठाना पड़ेगा आपको. Yes, is it visible? No मैम not complete. Only last वाले 2 numbers ही visible है मैम. No मैम. सिर्फ 980 क्योंकि आप पोजीशन ठीक नहीं है मैम इसकी completely दिखाई नहीं देगा. आप एक बार ऐसे करो मूव करके इनको दिखा दो कि ऐसे है 5000 से आप स्टार्ट करके हाँ जी ऐसे मूव करके दिखा दो. Yes, see. So the answer is Yes. 5000. Yes. Excuse me, ma'am. Okay. So now, मैम yes. Yes, Tanya. मैम आपने इससे पहले कुछ कराया था मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है. Yes, beta. आपने इससे पहले कुछ कराया तो नहीं मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है. No, it was the first activity. Now I am going to share the screen again. Okay. So next activity is write the predecessor of the number of this car. Now इस कार पे जो number लिखा है, you have to write the predecessor number of the given number. जो number लिखा है, आपने उसका predecessor लिखना है. Very good. Samriti has given the answer. You have to write in the chat box. Very good. Kamal Pahal, Satvik, Jivesh, Gaurav, Aryan, Sargun, Anish, Sahipreet, Mahin, Tejwil, Mahiraj. Very good. Very good. All have given the right answer. Sanvi, Sukhraj, Dhankor, Harshana, Rudraksh, Nirmit, Tanveer, Preeti, very good. Harman, very good. So, how we get the predecessor? We take the previous number, okay, before, or we can minus 1 from the given number. हम given number में से अगर minus 1 कर देते हैं, then we will get the predecessor. Okay, very nice, very good. Now, I am going to show you the next activity. Write the successor of the number of this car. Now, again, one more car is there,
and the number is given, you have to write the successor. Successor लिखना है आपने. Very good, हिम्मत, कन्वर्जोत, मनन, सुखराज, अभव, पानव, आर्यन, अमरजीत, जीवेश शर्मा, सात्विक, नव्या, very good, हर्षाना, पालिका, very good, हरदमन, अनाहत, अंशिका, हर्षिका, साहिबप्रीत, जपलीन, तेजवीर, हरकीरत, हरमन, एकम, very nice, आयुष्मान, very nice. कलावती के भी आगे, ज्ञानवती के. So all of you have given the right answer. So we have to write the successor of the given number. So the successor is 3491. Successor is 3491. Very good. All have given the right answer. That means the concept of predecessor and successor is clear to you. So we revise these concepts today: successor and predecessor. Now see the next activity. Now this activity you have to write or you have to do on your notebook. आपको ये notebook पे लिखना है. Okay. Write the place value and face value of each digit of your birth year. आपको जो आपका birth year है, ठीक है, suppose किसी का birth year है 2012, तो आपने वो 2012 लिख के उसकी place value, हर digit की place value और face value notebook पे लिखनी है आपने. Okay? I'm going to repeat the instruction again. Write the place value and face value of each digit of your birth year. आपको अपने birth year you have to write on your notebook. You have to write. हुआ था तो उसका ना डिजिट लेना है, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू उसका लिखना है. हाँ जी. Very good, Sargun. You have to write on the notebook. You have to write your birth year first, and then you have to write the place value and face value of each digit of your birth year. आपको अपने birth year की place value and face value, ठीक है, दोनों को आपने लिखना है अपनी नोटबुक पे. Okay. I can see students are writing on their notebook. Very good. जल्दी से लिख लो. You have to write the place value and face value of each digit of your birth year. Okay. मैम सी इट. Yes, Karima. Show me your notebook. Have you done? Those who have done, they can write in the chat box. Done. Done लिख दे. यस मैम. Very good. You have to write. Very good. ID from Sandeep Sharma. Yes, good. Ishan has done. But I haven't shown anything on the screen. I am giving you instruction verbally. आपको मैम को सुनना है. आपको क्या करना है? आपको birth year, अपना जो आपका birth year है उसे लिखना है और उसमें हर एक digit की place value और face value. Okay. मैम वॉइस नहीं ऑडिबल है. You have to write the and face value of each digit. मैम आपकी हिस्ट्री याद पड़ा. I'm giving you 1 minute more. नहीं है मैम पे उनकी वॉइस नहीं ऑडिबल है. Ma'am, repeat again.
Ma'am, you are muted. Yes. So now see how we will write place value and face value. Everyone is not audible. Yes. Now see. Suppose your birth year is mostly birth year will be मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही. 12. Ma'am, is it not audible? Ma'am, it's audible. Now it's audible. Students, keep yourselves on mute. Now it is audible. Right, ma'am? See, suppose your birth year is 2012. So we have to write the place value of each digit. So first of all, we will write the place value of this digit. Okay? What will be the place value of 2? Place value of 2 will be 2000. First of all, you will write the place values on the top. Ones, tens, 100 and thousands. अब देखो 2 जो है वो 1000 के नीचे है. That means place value of 2 is 2000 and face value of 2 will be 2. आपको मैंने बताया था जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट जो होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है ना, द डिजिट इटसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 0, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 विल बी 0. ओके, एंड फेस वैल्यू will be also 0. Then next digit is 1, so the place value of 1 will be 10. Tens place पे है 1 तो 10 and face value will be 1. Face value will be 1. Okay? Ma'am, there are so many links in chat box. Don't see those links, beta. I have not sent any link. Okay? Now last digit is 2. So that is on ones place. 2 digit जो ones place पर है उसकी place value भी 2 ही होगी और face value भी 2 ही होगी. Okay? So in this way we will write place value and face value. Now you have to write in the chat box face value and place value of this present year. Okay? Present year कौन सा है? 2020. Ma'am, I है ना? am You have to write the place value and face value of this year in the chat box. Very good. Start writing. I can see Harjot. Very nice. I have seen your notebook. Hitanshi, I have seen your notebook. Good. Ma'am, I Now am write done. in the chat box. Write in the chat box face value and place value of each digit. Write in the chat box. Beta, you are writing done in the chat box. You have to write the place value and face value in the chat box. Sanvi has written very good. Very good. Nirmit Khurana has done. Write the answer in the chat box. Very good. Mahin has done. Sukhraj has done. Mahiraj has done. Very nice. Now I hope all the concepts of number system are clear to you. आपको number system के सारे concepts सब clear हैं. We have done write in words, write in figures, place value and face value, expanded form, short form, predecessor and successor. So I hope all the concepts are clear. अब मैं कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ किसी भी क्लास में किसी भी दिन. Okay, so be ready. Now if you have any doubt you can ask me. You
You can ask me if you have any doubt, any concept is not clear to you, you can ask me. ओके तो अब जल्दी से मुझे प्रीडिसेसर लिख के दिखाओ 2020 का. राइट द प्रीडिसेसर इन 2000 of 2020. Shaurya, very good, very nice. Pranav has written very good. Himmat Singh has given the answer, very good. Ayushman correct, Abhav correct, Mahin correct, Sanvi correct, Tejveer correct, Nikhil correct, Mandeep correct, Prisha correct, Nirmit good, Anish good, Mahiraj good, Anshika good, Radha very good, Jivesh very good. Okay, right now successor of 2020. Panav, Aryan, Harshana, Nirmit, Riddhi. Successor, you have to write the successor. Abhav, Bavleen, very good. Himmat Singh, Mahiraj, Mahin, very nice. Anish, very good. Nirmit, very good. Priti, it's not 2012 is the wrong answer. Corrected. Dhankor, very good. Garima, Satvik, Radhya, Harkirat, Anahat, very nice. All have given the right answer. So, successor of 2020 will be 2021 and predecessor of 2020 will be 2019. Okay. Okay, now ID from Niharika. Anji beta, unmute yourself. Niharika. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta, tell me. Good morning. Tell me. Good morning, ma'am. In predecessor, which number we take? Before or after? Predecessor में हम कौन सा नंबर लेते हैं? -1 +1. हाँ जी, -1 या +1? +1. Predecessor बेटा. Predecessor means पहले. Pre means पहले. तो before हम पहले वाला -1. yes, उसमें हम क्या करेंगे? -1. yes, -1. So predecessor में हम पहले वाला नंबर लेते हैं. सक्सेसर में हम देखो सक्सेसर बना है सक्सेस वर्ड से सक्सेसर बना है. सक्सेस का मतलब आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना. तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम आफ्टर बाद वाला नंबर लेंगे +1 करेंगे, है ना. और प्रीडिसेसर बना है प्री से. प्री मतलब पहले. इसका मतलब हमने कौन सा नंबर लेना है? बिफोर. और बिफोर हमें कैसे मिलेगा? -1 करके. ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है कि सक्सेसर मीन सक्सेस, हमें आगे बढ़ना है तो +1. प्रीडिसेसर मतलब पहले, हमने पिछला नंबर देखना है. ठीक है, तो -1. ओके, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. इनको याद रखने का बस ये मेथड आपने रखना है अपने पास कि सक्सेसर मतलब सक्सेस तो +1 और प्रीडिसेसर मतलब प्री पहले तो -1. ओके, so that's all from my side. If you have any doubt you can ask me now. Otherwise after that your EVS class will be started. So I think there is no doubt. Good evening Neetu ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Purnima ma'am, and good morning. Good morning, ma'am. Okay, how are you all? I hope you all are fine and ready for EVS activities. Show me your thumbs up. Show me your thumbs up if you are ready. Ma'am, your voice is not visible. Ma'am, your Ma'am, unmute yourself. Ma'am, you are muted.
Neetu ma'am, you are muted. Ma'am, you are mute. ओके स्टूडेंट्स, डोंट म्यूट अस. आप मुझे भी म्यूट कर रहे हो और मैम को भी. आपको पता है ना रिकॉर्डिंग हो रही है. Ma'am, you are muted. ओके, आई एम नॉट म्यूटेड नाउ. Ma'am will be back in just a second. So please take care of this thing. You will not mute anyone, not by intentionally or not by mistake, right? You will not touch anywhere on your screen. थोड़ा सा बस अपनी स्क्रीन से दूर होके बैठो. आप कहीं भी टच नहीं करोगे क्योंकि अब इसकी सेटिंग ऐसी है. अब आप हल्का सा भी टच करते हो तो म्यूट हो जाते हो. हम म्यूट हो जाते हैं, राइट? तो आप ऐसे नहीं करोगे. I hope all of you have brought your notebooks and write down today's date. Yes, Pete, you should also keep your book with you. You should also keep your book with you because अभी हमारे ये चैप्टर न्यू है तो आपको सारे स्पेलिंग्स अच्छे से नहीं आ रहे होंगे. तो हमें सारे स्पेलिंग्स लर्न हो जाएं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए आपकी बुक भी आपके साथ होनी चाहिए. Am I clearly audible? Show me your thumbs up. अगर आपको मैम की आवाज ध्यान से सुन रही है, ओके, समझ आ रहा है सब कुछ. बुक भी आपके साथ होनी चाहिए. So today's activity is again of chapter My Sweet Home. यही चैप्टर हम कर रहे हैं ना, My Sweet Home. And the topic is people who build a house. वो लोग जो हमारा घर बनाते हैं. ये हमने चैप्टर में पढ़ा है. जो लोग हमारा घर बनाते हैं, हम उनके बारे में फिर से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि हमें सब कुछ समझ आ जाए. Many people work hard and together to build a house. बहुत सारे लोग मिलजुल कर बहुत हार्ड वर्क के साथ हमारा घर बनाते हैं. So let us meet some of them. आइए हम उनसे मिलते हैं. Are you ready? What do we call the person who makes drawing of a house? मैम ने आपको बताया था कि सबसे पहले जब घर बनना होता है तो सबसे पहले ना उसकी प्लानिंग होती है, उसकी ड्राइंग बनती है कि कितने एरिया में रूम्स बनेंगे, कितने वो रूम्स कैसे होंगे. नो, did I tell you to write in the chat box? No, you will write in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. और अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं, प्लीज अपनी बुक में से देख के स्पेलिंग लिखिए. आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए. आज जब ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद हमने स्पेलिंग्स देखना है किसको लर्न हो गए. तो मैम ने आपसे स्पेलिंग सुनने हैं. ये किसी की भी टर्न आ सकती है स्पेलिंग सुनाने की. ओके, ये तो सबको क्विकली पता चल गया ना कि आर्किटेक्ट इसका आंसर है. बट स्पेलिंग भी सबको लर्न होने चाहिए, इसलिए पहले आप देख के लिख लो अपनी बुक में से. नोटबुक पे लिखना है. यस, नोटबुक पे लिखना है. ओनली आंसर लिख लो. ओके. तो द आंसर इज आर्किटेक्ट. एन आर्किटेक्ट मेक्स द ड्रॉइंग ऑफ अ हाउस. जो आर्किटेक्ट होता है वो हमारे घर की ड्राइंग बनाता है. वो पर्सन जो हमारे घर के लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसा घर होगा, कितने रूम्स होंगे, कितना ओपन एरिया होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कितना बड़ा रूम होएगा, क्या सिस्टम होएगा पूरे घर का, उसकी पूरी ड्राइंग बनती है, प्लानिंग होती है, जिसको आप हिंदी या पंजाबी में नक्शा भी कहते हो. सुना है आपने कभी कि घर के लिए नक्शा पास हुआ है भाई? किसी ने सुना है कभी?
तो वो कौन बनाता है? वो आर्किटेक्ट बनाता है। ओके, लिख लिया सबने अपनी नोटबुक में? और स्पेलिंग देखो, आपको स्पेलिंग लर्न हो रहे हैं इसके। ARCHITECT, आर्किटेक्ट। ओके, ARCHITECT। आपने बिना माइक को ऑन किए मैम के साथ साथ बोलो ताकि आपको लर्न हो जाए। ARCHITECT लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी एक्टिविटी के बाद मैम ने आपसे ये सुनने हैं स्पेलिंग्स, राइट? ARCHITECT। चाहे आप इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स लिख लो, चाहे अपनी नोटबुक पे, क्या पता बार बार लिखने से आपको जल्दी लर्न हो जाए। जब हम आपको याद है जब हम क्लास में वर्क करते थे और हमारी कोई मिस्टेक हो जाती थी तो मैम आपको बोलते थे ना, राइट योर मिस्टेक्स 5 टाइम्स। 5 टाइम्स लिखने के लिए बोलते थे स्पेलिंग्स आपको, ताकि आपको स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो आप इसको 5 टाइम्स भी लिख सकते हो ताकि आपको लर्न हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज, what do we call a person who builds the wall of a house? Don't write in the chat box बेटे, write in your notebook. मैम फर्स्ट वाला बोल दो। क्या फर्स्ट वाला? आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट हो गया। अब आर्किटेक्ट था ना पहले, आर्किटेक्ट अ पर्सन हु मेक्स द ड्राइंग ऑफ अ हाउस। नाउ नेक्स्ट इज, what do we call a person who builds the walls of a house? अगर किसी का माइक वर्क नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी हमें जरूरत नहीं है माइक की। आपने तो बोलना नहीं है, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और स्पेलिंग्स अगर आपको नहीं आते हैं, आपने अपनी बुक में से चेक करने हैं। अंधेरी में बैठी and the answer is mason. The mason मुझे पता है। MASON, mason. Mason builds the house. जब आर्किटेक्ट वो प्लानिंग कर देते हैं, सारी ड्राइंग बना देते हैं, तब मैसन जो है वो घर की वॉल्स बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ जी मैम, फर्स्ट अराइविंग था। हाँ, फर्स्ट अराइविंग था। आर्किटेक्ट बेटे, फर्स्ट आर्किटेक्ट था। आप अपनी बुक में से देख सकते हो अगर आपका कुछ मिस हो गया। MASON, मैसन। राइट डाउन, आप इसको 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स लिख सकते हो स्पेलिंग्स को, ताकि आपको सारे स्पेलिंग्स लर्न हो जाए। ओके, MASON, मैसन। Next, what do we call a person who makes doors and windows? वो लोग जो डोर्स एंड विंडोज बनाते हैं, वुड वर्क करते हैं। बेसिकली वो जो लोग वुड वर्क करते हैं, ओनली डोर्स विंडोज नहीं, हम अपने घर में कबर्ड्स बनवाते हैं और हम वुड वर्क करवाते हैं। तो वो जो लोग ऐसा वाला वर्क करने के लिए आते हैं, ऐसा वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम फर्नीचर भी बनवाते हैं। डोंट राइट इन द चैट बॉक्स, डोंट राइट इन द चैट बॉक्स। अपनी पेंसिल के साथ बेटे, जब आप अपनी नोटबुक पे अपनी पेंसिल के साथ लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में वो स्टोर होगा, वो स्पेलिंग स्टोर होंगे। सो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कभी कभी हम चैट बॉक्स में कर लेते हैं, बट अगर हम नोटबुक में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन द नोटबुक. यस, द आंसर इज कारपेंटर. द कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. बिना माइक को ऑन किए मैम के साथ साथ बोलिए, द कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. एंड कारपेंटर की स्पेलिंग तो वेरी इजी है, CARPENTER. कारपेंटर. पहले आपको कार लिखना है, फिर पेन लिखना है, फिर TER. कारपेंटर. राइट डाउन बेटे इन योर नोटबुक. बाद में मैम ने सबकी नोटबुक चेक करनी है. एक्सक्यूज मी हाँ मैम. जी. मैम हमने जो हमने कारपेंटर जैसे हमने कुछ वर्ड लिखे, मैम हमने उनके साथ द कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज ये भी लिखना है. अगर आपके पास टाइम है, अगर आप क्विकली लिख सकते हो तो लिख लीजिए. ओके मैम. आज का हमारा पर्पस है मेन कि आपको समझ आए कि कौन से पर्सन क्या वर्क करते हैं, और हमें स्पेलिंग सारे लर्न हो जाए. ठीक है. ओके. आज जब मैम ने आपको बैक एक्सरसाइज के लिए वीडियो सेंड की है, उसमें भी ये है ना कि कौन जो पर्सन्स हैं वो क्या वर्क करते हैं, तो उसको आपने बुक में भी लिखना है. बुक में लिखना है ना आपको, अपनी बैक एक्सरसाइज में फिल करना है, तो आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी. तो अभी आप ओनली उन पर्सन्स के नेम लिखिए ताकि आपको उनके स्पेलिंग्स लर्न हो जाए. नेक्स्ट इज, what do we call a person who fixes water pipes and taps? मैम बोलना नहीं है, लिखना है. आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए. प्लम्बर. ओके. आपका प्लम्बर. वेरी बैड आइडिया रमन शर्मा. आप कहना नहीं मान रहे हो ना. आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने हैंड्स पे, कि आपका माइक पे टच नहीं करना है. आपका हैंड आपने यूज करना है फॉर राइटिंग. दिस टाइम आई एम आस्किंग यू टू राइट ऑन योर नोटबुक बेटा. प्लमर बोलना है इसको. बी इसमें साइलेंट है. प्लमर वो लोग जो हमारे घर में या कहीं पे भी वाटर पाइप्स की फिटिंग्स करते हैं, टैप्स का वर्क करते हैं, या कोई लीकेज आ जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम जिन लोगों को बुलाते हैं उन्हें कहा जाता है प्लमर. द प्लमर फिक्सेस वाटर पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस. इस टाइम हम हाउस की बात कर रहे हैं तो इसी ओनली हाउस. अदरवाइज कहीं पे भी हमें, अगर हमारे स्कूल में भी अगर हमें वाटर पाइप्स की फिटिंग करवानी है, अगर कहीं पे कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर के लिए हम बुलाते हैं प्लमर. ओके. PLUMBER. इसमें बी साइलेंट है, लेकिन आपको स्पेलिंग्स लिखते टाइम इसका ध्यान रखना है. PLUMBER. Speak with me without unmuting yourself. PLUMBER. बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मैम के साथ साथ मैम का कहना मान के रिपीट कर रहे हैं मैम के पीछे, और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. IT with संदीप शर्मा, यू आर लाइंग ऑन द सोफा, यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग विथ मी, है ना. द अदर डे यू वर ईटिंग. मैंने आपको बोला था आप गुड गर्ल हो, आप भूल गए. आपने ये भूलना नहीं है कि आप सब गुड बच्चे हो. ओके, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट. ये आपने भूल नहीं जाना है. आपने ऑलवेज याद रखना है कि आप सब गुड बच्चे हो. तो गुड बच्चे कैसा बिहेव करते हैं वो याद रखना है, वैसा बिहेव करना है आपने. जैसा गुड स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं वैसा बिहेव करना है. ओके. ओके, राइट. स्माइल ऑन योर फेस. अगर हम खुश होके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद होगा.
और सबने अपने कैमरास ऑन रखने हैं ताकि मैम आपकी स्वीट स्माइल देख पाए. ओके, नेक्स्ट इज what do we call a person who fixes wires and switches? अब जब हमारा घर बन गया तो उसमें लाइटिंग वगैरह सब कुछ होना चाहिए ना, फैन चलाने, हमें एसी चलाना है, हमें लाइट चाहिए, तो इस सब की फिटिंग कौन करता है? आपकी दिख नहीं रही स्क्रीन. स्क्रीन तो मेरी दिख रही है पूर्णिमा मैम, इज इट विजिबल ना? Yes, ma'am, Yes, visible. it is. Check your connection. Screen is visible. What do we call a person who fixes wires and switches? घर में हमारे, या स्कूल में, या किसी ऑफिस में, किसी भी बिल्डिंग में जो वायर्स एंड स्विचेस की सारी फिटिंग होती है उसको अपनी स्क्रीन को बड़ा हाँ जी मैम, लेकिन आपने उसको बड़ा किया है. क्या किया है? तो उस पर्सन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, right? The electrician fixes wires and switches. Okay, repeat with me without unmuting yourself. The electrician fixes wires and switches. Very good. The electrician fixes wires and switches. And now we will learn the spelling. ELECTRICIAN. Write down in your notebook. इसको 5 times लिखिए ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए. इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN. राइट डाउन बेटे, 5 टाइम्स लिखिए सब, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ओनली स्पेलिंग ही तो लिखनी है, क्विकली लिख लो फटाफट. वेरी गुड आईडी संदीप शर्मा, वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम बेटा? हाँ जी गरिमा, वेरी गुड. अब आप बहुत गुड बच्चे बन के वर्क कर रहे हो. आईडी विद रमन शर्मा, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैंने लिख लिया. वेरी गुड. आईडी विद रमन शर्मा, व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम, I also to done. Okay, if you have done, that's very good. आपको लर्न भी होने चाहिए स्पेलिंग, आपको लर्न भी होने चाहिए. अभी आपकी टर्न आएगी फिर स्पेलिंग सुनाने की. Who paints our house? जब हमारा पूरा घर बन के रेडी हो जाता है तब हम अपना घर पेंट करवाते हैं ना. ओके, तो who paints our house? Yes, don't write in the chat box, write in the notebook. Done, ma'am. The painter paints the house. और पेंटर, अभी एक लिंक आया है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इग्नोर दैट लिंक. अभी आपको जो मैम बोल रहे हैं उसको ही सुनना है. The painter paints the house. The painter paints the house. पेंटर के स्पेलिंग तो वेरी इजी, पेंट लिख के ओनली ER आपको ऐड करना है. PAINTER, पेंटर. ओके, PAINTER, पेंटर. तो ओके, नाउ राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स. जिसको सारे स्पेलिंग लर्न होंगे, जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मुझे सारे स्पेलिंग्स लर्न हो गए हैं.
तान्या, पनव, आयुष्मान, हर्षाना, निहारिका, कशिश, मानिया। ओके, चलो अभी सबकी टर्न आ रही है, तो अभी सबके पास टाइम है, फटाफट क्विकली रिवाइज कर लो। जब तक आपका नेम नहीं बोल रहे मैम, तब तक सब बच्चे अपने स्पेलिंग्स रिवाइज कर लेंगे। मैम गूगल फॉर्म कब करेंगे? गूगल फॉर्म तो आज नहीं करेंगे। Who told you? ओके, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपसे कुछ पूछना है, मेरे को वो लर्न नहीं हो रहा। बोलो। मैम ARCHITECT। आर्किटेक्ट। देखो, AR, स्पीक विद मी, ARCHITECT। इसको 5 टाइम्स लिखो, अभी लर्न हो जाएगा। ARCHITECT, आर्किटेक्ट। चलो अभी पहले मैम आपसे ये सुनेंगे, ID विद भागमल। ID विद भागमल अभी मैंने देखा था किसी, हाँ जी। व्हाट इज योर नेम बेटा? अनम्यूट करो ID विद भागमल। मैम कैन आई लीव? वाई? हाँ जी, व्हाट इज योर नेम बेटा? स्पीक अप। मैम तपनांशु। तपांशु। ओके ओके। What do we call a person who fixes electric wires and switches in our house? याद है आपको? जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस फिक्स करते हैं, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मैन। इलेक्ट्रीशियन। स्पीक विद मी, इलेक्ट्रीशियन। आपको स्पेलिंग लर्न नहीं हुए तो अपनी नोटबुक से देख के बोलो। स्पीक। मैम इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। Speak electrician and speak the इलेक्ट्रीशियन। spellings. इलेक्ट्रीशियन मशीन भी ठीक करता है। हाँ जी हाँ जी, जो भी इलेक्ट्रिक का जो भी सामान होता है ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक, वो ठीक है। ID with K7 Fitness Studio. What is your name? मैम रुद्राक्ष। What? मैम रुद्राक्ष। Rudraksh. You tell me spelling of electrician. ELECTION।